A lovely afternoon and warm welcome to everyone present here. Thank you for joining us in today's webinar. I, Arati, and my friends Aditi and Anirudh will be hosting today's webinar. Let us begin today's meeting with a brief discussion about the topic. Team Aram brings to you an interactive webinar on casteism. According to Aryan Sharma, casteism basically refers to a blind group loyalty towards one's own caste or subcaste, and it does not take into consideration the endorsements of the other caste. And this often leads to the exploitation done by the members of one caste towards the members of the other caste in the name of superiority and inferiority. Casteism also paves way for many caste based conflicts in the society, which refers to the hatred done by the members of one caste towards the members of the other caste, or the attempts made by the member of one caste to denigrate the members of the other caste. Long story short, we can say that casteism basically refers to one sided group loyalty towards one's own particular caste. I hope I've made the topic for today's session pretty clear. Now, I will invite my friend Anirudh to take the floor ahead. Joining us today is a renowned personality and an amazing visionary. When I say amazing, I mean it. What's special about him is that when you listen to him, you will notice the power and inspiration in his voice. Also, he is currently the member of National Commission for Scheduled Caste Government of India. So let's welcome Dr. Yogendra Paswan. Dr. Yogendra sir has completed his MA and PhD from Patna University, and also he has done various exceptional works. He was once the Vice Chairman of State Scheduled Caste Commission, Government of India, Chairman for 6 months for State Scheduled Caste Commission, Government of Bihar. Also, he was the member of Child Labor Commission, Government of Bihar, member of 20-point Program Implementation Committee, member of Patna University Admission Inquiry Committee, and the member of Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana, Ministry of Self, Social Welfare and Empowerment, Government of India. So a very warmful and a fruitful welcome to you, respected sir. Today, Dr. Yogendra sir will be sharing his own views on casteism that will change our mind. So before starting the event, I would like to request all of you to please mute your mics during the webinar. Now, I would like to invite Dr. Yogendra Paswan sir to speak few words with us. Welcome, sir. Thank you. Hello, Hemanta. Yes, sir, you are audible. बोलिए. एक सेकंड में वो ज्वाइन कर रहे हैं. Just wait, guys. आज के इस कार्यक्रम में शामिल सभी हमारे छात्रगण और इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे भाई योगेश जी, आज जिस तरह से आप लोगों ने देखा है कि सामाजिक व्यवस्था जो पहले से चली आ रही थी उसको बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, इन सभी लोगों के आंदोलन के कारण जाति व्यवस्था काफी कमजोर हुआ है। लेकिन आज भी जाति व्यवस्था है और यह जाति व्यवस्था पूर्ण रूप से तभी जाएगी जब अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग समाज के लोग एकजुट होकर रहेंगे और एकजुटता के साथ इसका
मुखालफत करने की जरूरत है। आज भी बहुत ऐसे जगह हैं जहां पे हमारे लोगों के साथ, कमजोर वर्ग के लोगों के साथ जातीय भेदभाव के तहत उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। तो इन सब चीजों को समाप्त करने के लिए संपूर्ण मानव समाज को आगे आना होगा। जब तक संपूर्ण मानव समाज आगे नहीं आएगा, तब तक जाति व्यवस्था को समाप्त करने में हमें कठिनाइयां होती रहेगी। आज देखते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के बीच उन पर अत्याचार की घटनाएं घटती है, और जिस तरह से उन पर जो अत्याचार करते हैं उनको उन पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। कहीं ना कहीं आज भी विलंब होता है। तो इस विलंब को दूर करने के लिए जब तक अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति के लोग एकत्रित नहीं होंगे, तो हम लोगों पर किसी न किसी रूप में प्रहार होता रहेगा। तो इस प्रहार को रोकने के लिए एक ही उपाय है कि जो जहां हैं हमारे भाई बंधु बहन, वहां अपने आप में सशक्त बनने की जरूरत है हमें। और इसका एक ही मंत्र है, शिक्षा। कोई सिर्फ दूध पी करके पहलवान नहीं हो सकता है। उसके साथ ही साथ जब शिक्षा पूर्ण रूप से हमारे वर्ग के लोगों को मिल जाएगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हमारे साथ भेदभाव अगर करेगा तो हम उसका मुखालफत करने के स्थिति में तैयार रहेंगे। और शिक्षा के माध्यम से हम बड़ी बड़ी लड़ाई को जीतते आए हैं और जीतेंगे। जहां तक जाति व्यवस्था का सवाल है, तो संकीर्ण मानसिकता के लोग जो काफी बुजुर्ग हैं, उन लोगों में भी कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो आज भी वर्ण व्यवस्था को लेकर के चलते हैं। आज जो परिवर्तन आया है, इसमें नौजवान छात्र और छात्राओं का भी अहम भूमिका रहा है, क्योंकि अब लोग मिलजुल करके परस्पर चलने का काम करते हैं, बैठने उठने का, खाने पीने का एक साथ काम करते हैं, जिसके कारण जाति व्यवस्था टूट रहा है। उसको हम लोग पछाड़ रहे हैं, लेकिन आज भी गांवों के अंदर कुछ रूढ़िवादी मानसिकता के लोग बचे हुए हैं। वो लोग हम लोगों को, हमारे समाज के लोगों को हे दृष्टि से देखने का काम करते हैं। तो जो लोग इस तरह से हम लोगों को गलत तरह से देखते हैं, उनके लिए यही है कि हम सब लोग एकत्रित रहें, और इस तरह का जो लोग गांव के अंदर भी संकुचित विचारधारा के लोग हैं, जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, इसमें समाज के सभी वर्ग के लोगों को एकजुट हो करके वैसे लोगों का बहिष्कार करने की जरूरत है। सामाजिक स्तर पर भी बहिष्कार करने की जरूरत है, और कानूनन रूप से भी उनको कानून के दायरे में ला करके उनको दंडित करने की जरूरत है, ताकि इस तरह के मानसिकता वाले लोगों को समाप्त किया जा सके, उनके सोच को बदला जा सके।
उनकी सोच को बदलने के लिए हम सब लोगों को आज के समय में क्रियाशील कार्य करने की जरूरत है। जैसे कला के माध्यम से, वन संरक्षण के माध्यम से हम लोग कोई भी एक पेड़ लगाते हैं तो उस पेड़ को बड़ा करने में हम लोगों को काफी मेहनत करना पड़ता है। उसका पेड़ लगा देना ही एक सबसे बड़ी बात नहीं है। पेड़ को संरक्षित करना भी सबसे बड़ा हम लोगों का योगदान होना चाहिए। और जहां तक जातिवाद का सवाल है तो जातिवाद आज काफी कम हुआ है और इसको जो बचा हुआ है उसको भी हम लोगों को नेस्तनाबूद करने की जरूरत है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आज न्यायालय के अंदर हमारे लोगों की कमी है, कमी ही नहीं, उसको नगण्यता कह सकते हैं, न के बराबर हमारे लोग न्यायालय के अंदर हैं, जिसके कारण हमारे लोग कभी कभी भूलवश छोटी भी गलती करते हैं तो उनको बड़ा सजा का अंजाम भुगतना पड़ता है। और जो समाज के जागरूक लोग हैं वो बड़ी बड़ी गलती भी करते हैं तो उनको जिस तरह से दंड मिलना चाहिए वह दंड नहीं मिल पाता है, क्योंकि न्यायालय के अंदर जब तक हमारे लोगों की संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक हमें उचित न्याय मिलने में विलंब होता रहेगा। तो इसके लिए है हम अपने भाई और बहनों से कहेंगे कि आप सब लोग लॉ के प्रति आगे बढ़िए। लॉ के क्षेत्र में, क्लैट के क्षेत्र में आगे बढ़ करके, और जैसे ही लॉ की डिग्री आपको मिलेगी, लॉ को अच्छा ढंग से आप अध्ययन कर लेंगे तो हमारे समाज के लोगों को कोई प्रताड़ित करने का काम नहीं करेगा। अगर प्रताड़ित करने का वो काम करेगा तो जब न्यायालय के अंदर हमारे लोग रहेंगे तो उसको कठोर सजा दिलाने का भी काम करेंगे। तब जाकर के समाज के अंदर जो थोड़ी बहुत बराबरी आने में कमी रह गई है उस कमी को दूर किया जाएगा। मित्रों, आंकड़े आज भी देश के अंदर जो आंकड़े आते हैं वो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, जहां उच्च पद पर सेक्रेटरी हो, एडिशनल सेक्रेटरी हो, वैसे पदों पर आज भी हमारे लोगों की संख्या काफी कम है। और इतना ही कम नहीं, न के बराबर है मित्रों कि आप अगर 44 मंत्रालय है तो कहीं कहीं एक आध लोग, दो लोग मिल जाएं गलती से, वही है, उससे ज्यादा नहीं आज भी हुआ है। तो इसके लिए हम सब लोगों को शिक्षा के प्रति जन जागरण अभियान चलाने की जरूरत है। अपने लोगों को टोले मोहल्ले में, गली कुची में, जहां भी हम सब लोग रहते हैं तो उस जगह पर अगर एक भाई स्नातक पास है, ग्रेजुएट है, तो बगल वाला अगर किसी तरह से पिछड़ रहा है तो अपने घर से भी अगर उसको कुछ सहयोग करने की आवश्यकता पड़े तो हम सब लोग को करना चाहिए, और करके उसको भी आगे लाने की दिशा में हम सब लोगों को काम करना होगा। जब तक हम सब लोग अपने समाज के लोगों को एकत्रित करके शिक्षा के प्रति जागृत करके आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा समाज जिस तरह से आज छुआछूत का, जातिवाद का शिकार होता है, आगे भी हमारे साथ ऐसी समस्याएं आ सकती है। अगर इस समस्या से निजात पाना है तो हम सब लोग के पास एक ही रास्ता है, वो शिक्षा का रास्ता है। उस रास्ते को अपना करके हम लोगों को आगे बढ़ना है मित्रों। और आप जिस तरह से भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाने का काम किया है, यह पहले से बाबा साहब अम्बेडकर का देन है
कि आज संवैधानिक संस्था के रूप में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है और इस आयोग से हमारे छात्र छात्राएं, गरीब, नौजवान, किसान, नौकरी करने वाले, पढ़ाई करने वाले लोग, सभी लोग आयोग का लाभ ले सकते हैं। लाभ का मतलब यह है कि अगर हमारे भाई लोगों पर, बहनों पर किसी तरह का कोई कुटाराघात करने का काम करता है, जुल्म करने का काम करता है, तो आपका यह संस्था, यह न्यायालय है जिसके माध्यम से दोषियों को दंडित कराने में इस संस्था का अहम भूमिका है। और हमारे भाई लोग, बहुत ऐसे भाई बहन हैं जो नहीं जानते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति क्या है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो आर्टिकल 338 के तहत भारत के राष्ट्रपति ने इसका प्रावधान किया है। आप लोगों से यही हम कहेंगे कि जो भाई हमारे, जो बहन जिस जगह पे हैं, हमें अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना है। अगर हम पर कोई अन्याय करता है तो हम उसका मुखालफत करेंगे, हम स्वयं अन्याय करेंगे नहीं, और अगर हम पर अन्याय करना चाहेगा तो उसके अन्याय को सहेंगे भी नहीं। एकजुट हो करके उसका जवाब देंगे, उसका मुखालफत करेंगे। जिस तरह से भी हो सके हम हर एक रूप से सक्षम होने का, स्वावलंबी होने का प्रयास करेंगे और प्रयास करके इस व्यवस्था, जाति व्यवस्था पर कुठाराघात करेंगे। इस व्यवस्था के मानने वाले लोगों के मनोबल को तोड़ने का काम करेंगे और आगे हम सब भाइयों को आगे बढ़ने के लिए जो भी प्रयास करना पड़ेगा हम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मित्रों, जिस तरह से हमारे जनजाति समाज के लोग हैं, आज भी वो जंगलों में वास करते हैं। जमीन, जंगल, इस पर उनका पूरा का पूरा अधिकार था। आज उसको कुछ लोग जो मजबूत अपने को कहते हैं, वो लोग जंगल उनसे लेने का काम कर रहे हैं, उनसे छीनने का काम कर रहे हैं। तो वैसे लोगों के लिए भारत सरकार ने भी कानून बनाया है कि अगर हम अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को कहीं भी कोई दबाने का काम करेगा तो कानूनन रूप से उसको कानून के दायरे में ला करके दंडित किया जाएगा, ताकि वो आगे आने वाले दिनों में इस तरह का काम नहीं कर सके। मित्रों, आज बहुत ऐसी घटनाएं हम लोगों को, आप लोगों को सुनने को मिलता होगा कि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ इस तरह की अमानवीय घटनाएं घट गई। देखिए, इसके लिए, अमानवीय घटना को जो भी अंजाम देते हैं, वैसे लोगों को सामाजिक रूप से भी हमको उनका बहिष्कार करने की जरूरत है। उनको सामाजिक रूप से भी दंडित करने की जरूरत है। कानूनन रूप से भी प्रशासन के लोगों को त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है कि ताकि प्रशासन जब त्वरित कार्रवाई करेगी तो कोई भी कितना ही बड़ा अपराधी हो, जब सलाखों के पीछे वो चला जाता है तो फिर वह अपराध करने के लिए उसको सोचना पड़ता है। दूसरी ओर पुलिस तो उसको गिरफ्तार करके बंद कर देती है, लेकिन हमारे यहाँ कानून इतना पेचीदा है कि उसको सजा मिलते मिलते काफी दिन लग जाता है। सजा मिलने वाली जो प्रणाली है, उस प्रणाली को भी चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। तो उसको कैसे चुस्त दुरुस्त किया जाएगा? जब हमारे लोग आगे आएंगे, आगे बढ़ेंगे, कानूनन रूप से लॉ के क्षेत्र में, लॉ यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से, कॉलेजों से पढ़ करके जब पूर्ण रूप से कानून हासिल करेंगे और करके जब न्यायालय के अंदर एडवोकेट, जज बनेंगे, तब वैसे लोगों
लोग जो हमारे लोगों पर जुल्म करते हैं, उन पर, उनके साथ जब कानूनी डंडा पड़ेगा तो कानूनी डंडा के आगे उनको झुकना पड़ेगा, नतमस्तक होना पड़ेगा। और आगे आने वाला दिन में हम लोगों पर अत्याचार करने से, जाति व्यवस्था फैलाने वाले को अपने आप में रुकना पड़ेगा। और नहीं तो कानून उनको, आज भी कानून में ऐसा प्रावधान है, किसी को जातीय व्यवस्था के तहत समाज के लोगों को प्रताड़ित करने का अधिकार नहीं है। लेकिन रूढ़िवादी मानसिकता के लोग आज भी इस तरह के काम करते हैं। तो जो लोग करते हैं उनके खिलाफ हम सब लोग जब एकजुट रहेंगे, हमारे बच्चे बच्चियां सब एकजुट रहेंगी, तो उनके विचार को हमेशा तोड़ने में हम सफल होंगे और उनके इरादे को नेस्तनाबूद करते रहेंगे। और हमारा जो अनुसूचित जाति जनजाति भाई का कारवा है तो आगे बढ़ता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि जातिवाद व्यवस्था पूर्ण रूप से समाप्त होगा और इसके सूत्रधार हम लोग होंगे, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग होंगे। जितना हम सब लोग इस दिशा में ठोस कदम उठा करके आगे बढ़ेंगे, उतना ही जातीय व्यवस्था जल्द समाप्त होगी। मित्रों, हेलो, Host can now proceed. Thank you so much, Dr. Yogendra Paswan, sir. It was a pleasure to have you here. Now, there are few questions by the students. We would like you to answer few of them. So, what are the steps taken by the government of India to abolish caste discrimination? देखिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए भारत सरकार ने कई तरह का जन जागरूकता अभियान चलाने का काम किया है। गांव के अंदर नुक्कड़ नाटक करके समाज कल्याण विभाग जो है, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम से भारत सरकार राज्य सरकार को इस हेड में राशि मुहैया करने का काम करती है कि आज भी अनुसूचित जाति का जहां टोला है, गांव है, उस गांव के अंदर नुक्कड़ नाटक करके, और बाबा साहब ने जिस तरह से लड़ाई को लड़ा और जातीय व्यवस्था को तोड़ने के लिए उन्होंने जितना प्रयास किया, उसी का परिणाम है कि आज काफी हद तक जाति व्यवस्था समाप्त हुआ है। इसमें हमारे जो भी पुरोधा रहे, चाहे झांसी की रानी हुई, ज्योति बाबा फूले हुए, जो भी हमारे पूर्वज हुए, उन्होंने, और आपको बता दें कि बिहार के अंदर जातीय व्यवस्था को तोड़ने में कई महापुरुष आगे आए। उसमें हमें कह सकते हैं कि बाबा चौहरमल जो टाल के अंदर रहा करते थे और सामंतवादी विचारधारा के लोग उनको काफी प्रताड़ित करने का काम करते थे, तो वह जिस तरह से इतना बाहुबली वो थे कि किसी के भी प्रताड़ना को सहने का काम नहीं किया और पूरे बिहार के अंदर उन्होंने सामंतवादी व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया, जिसके कारण आज जातीय व्यवस्था काफी टूटा है। Thank you so much, sir, for this information. So the second question is, when did caste discrimination became an alarming situation for the backward classes in the society? शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये लोग दोनों सामाजिक रूप से काफी आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं। सामाजिक रूप से तो मजबूत हैं, लेकिन आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं। तो आज के समय में शिक्षा हासिल करके
करके ही हम सब लोग आगे आए हैं, और आगे और बढ़ने के लिए हमें उच्च शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत है। और उच्च शिक्षा ग्रहण करके बैकवर्ड क्लासेज हों, शेड्यूल कास्ट हों, शेड्यूल ट्राइब हों, इन सभी लोगों को जिस तरह से जातीय व्यवस्था जकड़ा हुआ है, इस व्यवस्था को तोड़ने का एक ही कारण है, एजुकेशन, एजुकेशन। You're absolutely right, sir. Education is the only key to, empower yourself. How did Dr. B.R. Ambedkar help in abolishing caste discrimination? देखिए, अंबेडकर साहब ने, बाबा साहब ने जितना जातीय व्यवस्था को झेला, और झेलते हुए उन्होंने जिस तरह से अपने कौम के लोग, अपने वर्ग के लोगों को, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे लाने के लिए जितना उन्होंने यातनाएं सही, आज हम सब लोगों को उतना सहना नहीं पड़ रहा है। लेकिन हाँ, आज भी कहीं कहीं गांव के अंदर हम सब लोगों को भी सहना पड़ता है। तो उसके लिए कि हमको कल आने वाला दिन में जातीय व्यवस्था का शिकार न होना पड़े, तो इसमें सबसे बड़ा है कि हम सब लोग एकजुट हों। एससी, एसटी, ओबीसी, आज हम लोग को जिस रूप में एकजुट होना चाहिए, आज हम लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं। चाहे हमारे छात्र हों, नौजवान हों, किसान हों, मजदूर हो, बिजनेसमैन हो, जो भी हमारे सेक्शन के लोग हैं, वो एकजुट नहीं हो रहे हैं। और जिस दिन हमारे लोग एकजुट हो जाएंगे, तो जो भी सामंतवादी व्यवस्था के लोग हैं, सामंती व्यवस्था के लोग हैं, जातिवादी व्यवस्था के लोग हैं, उनको दूर भागना पड़ेगा, और उनको भगा करके हम लोग रहेंगे। True, sir. Do you think that caste discrimination is present in other religions as well, apart from Hinduism? देखिए, जहां तक आप ये देख सकते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर लाख यातना सहने के बाद भी उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को उनको इसलिए अपनाया कि वह धर्म भी हिंदू धर्म से मिलता जुलता है। तो वो क्रिश्चियन नहीं बने, मुसलमान नहीं बने, न ईसाई बने, न मुसलमान बने। इसके पीछे उनका कारण था कि अगर इस्लाम बन जाएंगे तो फिर हमारे सब लोग जिस तरह से मुल्क के अंदर, और मुसलमान लोगों की सोच, सभी मुसलमान उस सोच के नहीं होते हैं। बहुत ऐसे मुसलमान हैं जो हम सब लोगों के ही सोच के हैं। वो लोग भी जिस तरह से हम सब लोग भारत माता के साथ प्रेम करते हैं, उसी तरह से मुसलमान लोग भी करते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे कट्टरपंथी तत्व के लोग हैं कि जो भारत को भी विखंडित करने में, बाहरी देश के देश के लोगों के साथ मिलजुल करके कुछ षड्यंत्र करने का काम करते हैं। तो जिस तरह से बाबा साहब ने अपने प्रयास से बौद्धिज्म को अपनाने का प्रयास किया कि ताकि हम न इस्लाम बनेंगे, न ईसाई बनेंगे, और न हिंदू बनेंगे। वो बीच का रास्ता उन्होंने निकाला। और आप देखेंगे कोई भी धर्म बुरा नहीं होता है, उसको मानने वाले लोग बुरे नहीं होते हैं। कोई कोई धर्म के अंदर कुछ लोग वैसे विकृत मानसिकता के होते हैं जो उस धर्म को, हिंदुइज्म को गलत ढंग से परिभाषित करके उसको गलत दिशा में ले जाने का काम करते हैं। तो वैसे लोगों के ऊपर भी हम लोगों को एकजुट होकर के प्रहार करने की जरूरत है।
और जिस दिन हम सब लोग एकत्रित एकजुट हो जाएंगे, पूर्ण रूप से हो जाएंगे, तो इस तरह के मानसिकता हम लोगों के सामने नहीं आ पाएंगे। Thank you so much, sir. So the next question is, do you think that casteism is still prevalent in today's youth? देखिए, कास्टिज्म एक बहुत बड़ा देश का समस्या है। इस समस्या से निजात पाने के लिए कई प्लेटफॉर्म पर सरकार भी काम करवा रही है कि ताकि जातिवादी व्यवस्था से हमारे लोगों को निजात मिल सके। और इस दिशा में कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम भी चल रहे हैं और उस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाने की जरूरत है हम सब लोगों को भी। और सरकार तो अपने स्तर से कर ही रही है, कोई भी कार्य को सिर्फ सरकार के भरोसे हम लोग को नहीं छोड़ना है। हम लोग को भी, जिस दिन हम सब लोग अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अपने कर्तव्य को समझ जाएंगे कि हमारा कर्तव्य क्या है, तो जिस दिन हम समझ जाएंगे दूसरे ही दिन हमको अधिकार मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोगों को अपने कर्तव्य को समझते हुए अधिकार के लिए आगे बढ़ना है और हम जानते हैं कि हम जो अधिकार पाना चाहते हैं हमें वो अधिकार मिलेगा। कर्तव्य और निष्ठा से आगे बढ़ते हुए हम उस अधिकार को हासिल करेंगे। Thank you, sir. What message do you want to give to the youth of India to abolish caste discrimination? देखिए, यह भारत देश जो है, जो जातीय व्यवस्था से जकड़ा हुआ देश था और आज धीरे धीरे सामाजिक जागरूकता आने के कारण यह व्यवस्था टूट रहा, काफी टूट चुका है। थोड़ा बहुत जो बचा है उसको तोड़ने में आप सब लोगों का मेहनत अहम होगा। आप लोगों का मेहनत काफी रंग लाएगा और जिस तरह से आप लोग अवेयर हो रहे हैं, आज हमें खुशी है कि हमारे वर्ग के लोग, छात्र और छात्राएं, मेरे भाई और बहनें, बेटे और बेटियां जिस तरह से जातीय व्यवस्था पर हमला करने के लिए एकजुट हो रहे हैं, जो जातीय व्यवस्था बचा हुआ है उसको आप सब लोग का प्रयास काफी काम आएगा। हम सब लोग तो आप लोगों के साथ एनी टाइम चलने के लिए तैयार हैं। जहां भी किसी तरह का कोई समस्या आप लोगों के पास आएगा तो वहां पे आपका भाई, आपका गार्जियन आपके साथ खड़ा नजर आएगा। आप लोग एकदम तीव्र गति से आगे बढ़िए और इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करने वाले लोगों पर, जातीय व्यवस्था लाने वाले लोगों पर हम लोगों को अटैक करते रहना है। Thank you so much, sir, for this motivation. And I hope that the youth of India definitely abolish this ingrained practice. Thank you. थैंक यू। It looks like we have covered all our questions. Dr. Yogendra sir, is there anything else you would like to cover up before a wrap up? Sir, do you want to speak anything else? I think we're in the meeting. Left the meeting. You just continue. Okay, great. Thank you, everyone. Now, I would like to invite Ishita Bhatia, General Secretary of ARAM, for the vote of thanks. I think for this we should wait for him to join back. Who will I give thanks to? You can thank the audience also, no? Yeah, okay. So thank you all for joining us for today's webinar. As you all know that casteism is something which is very prevalent in our society, and especially when you come to Delhi University. So we thought that conducting a webinar on the same is extremely important for awareness, so that in future we can abolish this, very bad practice and make this world a better place to live in.
And I thank you all. So I'm Ishita. I'm the General Secretary of Aram. And on the behalf of Yogesh and Jocelyn, the founders of Aram, I thank you all for being there today. Thank you everyone for joining us today. Hope to see you next time. Thank you. Thank you all. You can leave now. Only the core members will stay. Others can leave. The members who are in council should leave, should stay. Other can leave. हेलो। हाँ जी सर। हाँ, Ishita Bhatia, you can give vote of thanks again. चलिए हम आज के अवसर पर यही कहेंगे आप लोगों को कि वक्त बहुत कम है, जितना दम है उतना लगा दो, कुछ को मैं जगाता हूं, कुछ को तुम जगा दो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। So I, on the behalf of the team Aram, want to thank Yogendra Paswan sir for joining us. तो मैं सर का धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने यूथ को मोटिवेट किया और बताया कि कैसे हमें जातिवाद के लिए हम उसके अगेंस्ट कैसे हम शिक्षित कर सकते हैं साथ में आने वाले। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सर हमारे साथ के साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे इसी लड़ाई में। एकदम आप लोग आगे बढ़ें, हम आप लोगों के साथ हैं। पूरा भारत के सभी लोग यूथ नौजवान साथ हैं, आपके साथ कमीशन रहेगी। जहां भी जरूरत पड़ेगा हम अपने लोगों पर जुल्म और अत्याचार अगर कोई करना चाहेगा तो उसको किसी भी सूरत में नहीं सहेंगे। वैसे लोगों को कानूनन रूप से दंडित करवाने का कार्य किया जाएगा। सर मेरी एक आपसे एक अनुरोध और है कि क्या होता है कि हम लोग आवाज उठाते हैं तो अपर कास्ट हमें दबाने की कोशिश करते हैं, मतलब हमारे कॉलेज वगैरह में भी ऐसा होता है, तो इसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? इसके खिलाफ हमारे वर्ग के जो भी छात्र हैं, शिक्षक हैं, उनको हम लोग विश्वास में लेंगे और लेकर के वैसे लोगों जो हमारे ऊपर कुठाराघात करना चाहते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। एकजुट होकर के हम लोग जवाब देंगे। सर कमीशन का उसमें क्या रोल हो सकता है? अगर ऐसा होगा तो आप लोग एक आवेदन देंगे कमीशन में, कमीशन उसको जांच करवाएगी और जांच करा करके कानूनन रूप से उसको दंडित करवाने के लिए प्रयास करेगी और दंडित करवाने का काम करेगी। धन्यवाद सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आज। चलिए, थैंक यू। ओके। चलिए, आप लोगों का उज्जवल भविष्य हो, यही मेरा कामना है। ओके, थैंक यू सर।